Hello dear students of class 10th. Today I am going to share with you a very interesting topic of second unit, that is matter effect of current. In this unit the topic electromagnetic induction is very interesting. So today I am going to share with you what is EMI, electromagnetic induction. Dear students, you have seen that when we pass current in the conductor, around the conductor magnetic field develops. If current means electricity can produce magnetism means magnetic field, whether its converse is possible or not, that was the question in the mind of the physicist कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से, करंट की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की जा सकती है तो क्या मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से करंट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, कन्वर्स. सो मेनी फिजिसिस्ट वर्क ऑन इट. एट लास्ट माइकल फैराडे, an Englishman, after performing his experiment, finally said that yes, with the help of magnetic field, electric current can be produced. Regarding his experiment, there is a very interesting theory that he has taken a coil, a circular coil in which he has attached a galvanometer. Galvanometer is a device which tells us the direction of deflection of the charge. Charge किधर deflect हो रहा है, किधर move कर रहा है, ये बताता है galvanometer. So he has taken a coil and a galvanometer and he has taken a bar magnet. Between magnet and that coil, he performed so many types of motion. Keeping the coil rest, he moved the magnet toward the coil. Keeping the coil rest, he moved magnet away from the coil. Keeping the magnet rest, he moved coil toward the magnet. Keeping the magnet at rest, he moved coil away from the magnet. He moved both the magnet and coil towards each other, away from each other in different orientation. Coil is moving like this, magnet is moving like this. So many possibilities he have performed. जितने भी तरह के मोशंस दोनों के बीच में हो सकते थे सारे उसने किए. But he has not observed deflection in the galvanometer. If galvanometer is not showing any deflection, it means no charge is flowing, means no current is there. But suddenly when he has thrown the magnet, immediately he has seen the deflection in the galvanometer. जैसे उसने मैट को थ्रो कर दिया कॉइल की तरफ, तुरंत उसने गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन देखा. देन ही रिपीटेड हिज एक्सपेरिमेंट. अर्लियर ही वाज मूविंग कॉइल और मैग्नेट और बोथ विद वेरी लेस स्पीड टुवर्ड्स ईच अदर और अवे फ्रॉम ईच अदर. Then he starts moving both towards each other or away from each other, or keeping coil at rest, moving magnet toward the coil, or keeping magnet at rest, moving coil toward the magnet. He performed this experiment with very high speed, and every time he has observed deflection in the galvanometer. Deflection in the galvanometer suggests that charge is flowing, means current is flowing, though in the circuit where we have connected coil with the galvanometer, cell was not present, yet we have observed current. Then he suggested his concept. He said yes, with the help of magnetic field current can be produced, and he introduced a term known as electromagnetic induction, EMI, electromagnetic induction. उसने ये कहा कि जब भी कॉइल और मैग्नेट्स के बीच में रिलेटिव मोशन होगा. डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेटिव टर्म बड़ा इंपॉर्टेंट है. रिलेटिव मोशन का मतलब होता है दोनों के बीच में, कॉइल और मैग्नेट के बीच में सेपरेशन बदलनी चाहिए. जैसे एक हमारा हैंड, ये कॉइल है, हमारा हाथ ये मैग्नेट है. अगर हम मैग्नेट और कॉइल को एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में चलाएं तो इनके बीच सेपरेशन नहीं चेंज होगी. दो बोथ आर इन मोशन. अगर हम इस तरह से मैग्नेट कॉइल को भगाएं, इस तरह से मैग्नेट को भगाएं एक ही स्पीड से दोनों को, तो इनके बीच में सेपरेशन चेंज नहीं होगी. ये रिलेटिव मोशन नहीं है. रिलेटिव मोशन का मतलब होता है दोनों के बीच में सेपरेशन बदलनी चाहिए.
तो आफ्टर परफॉर्मिंग हिज एक्सपेरिमेंट फाइनली फैराडे सेड दैट व्हेनेवर बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल देयर विल बी रिलेटिव मोशन, current will induce in the coil. That current is known as induced current. Induced current. And phenomena is known as electromagnetic induction. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एक फिनोमिना है जिसमें कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन करके हम कॉइल में करंट को प्रोड्यूस करते हैं, करंट को इंड्यूस करते हैं। और हम जानते हैं, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है कि करंट बगैर पोटेंशियल डिफरेंस की डेवलप नहीं हो सकती। अगर हम कंडक्टर के अक्रॉस सेल ना लगाते फर्स्ट चैप्टर में, अगर हम कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ना क्रिएट करते तो इलेक्ट्रॉन्स यूनिडायरेक्शनल मोशन ना करते। तो करंट के प्रोडक्शन के लिए पोटेंशियल डिफरेंस मस्ट है। तो डेफिनेटली अगर कॉइल जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ था, जब हमने मैग्नेट और कॉइल के बीच में रिलेटिव मोशन किया तो हमको कॉइल में करंट मिली, इट मीन्स उस सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस भी डेवलप हुआ होगा और उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ। सो व्हाट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ? द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप इन द कॉइल when between the coil and magnet there exists relative motion. What is induced current? The current develop in the coil when between coil and magnet there exists relative motion. What is electromagnetic induction? It is the phenomena in which we induce current in the coil by performing relative motion between current and coil and magnet. अब फैराडे से ये पूछा गया, जब फैराडे ने ये अपना ऑब्जर्वेशन दिया और इंटरनेशनल लेवल के फिजिसिस्ट के सामने इस पर्टिकुलर अपने कंक्लूजन को दिया, तो फैराडे से दो क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन नंबर 1 कि कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन जब आप करते हो तो कॉइल में करंट डेवलप क्यों होती है? वाई करंट डेवलप्स इन द कॉइल इफ यू परफॉर्म द रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट। और क्वेश्चन नंबर 2 कि ये करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगी, क्लॉकवाइज चलेगी कि एंटी क्लॉकवाइज चलेगी। तो फैराडे ने करंट क्यों डेवलप होती है इसके बताने के लिए दो लॉज दिए जिन्हें हम कहते हैं फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और फैराडे ये नहीं बता पाए अपने एक्सपेरिमेंट से कि करंट किस डायरेक्शन में डेवलप होगी। तो जब फैराडे इस बात को नहीं बता पाए तो इस बात को एक दूसरे फिजिसिस्ट ने बताया जिसका नाम था लेंज, LENZ। तो ये जो लेंज लॉ है जिसको हम बाद में आपको बताएंगे, इससे ये पता चलता है कि करंट जो इंड्यूस होगी उसका डायरेक्शन क्या होगा कॉइल में। और इन लॉज ने ये बताया कि कॉइल में करंट डेवलप क्यों होती है। साथ ही साथ उनसे ये भी जब पूछा गया कि जब आप कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन स्लोली कर रहे थे तो करंट प्रोड्यूस क्यों नहीं हो रही थी। जब आपने मैग्नेट को कॉइल की तरफ स्पीडली थ्रो किया या आप दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन स्पीडली करने लगे तो ही करंट क्यों डेवलप हुई। तो ये दो क्वेश्चंस कि करंट क्यों डेवलप हुई और करंट स्लोली मोशन पे क्यों नहीं डेवलप हुई, स्पीडली मोशन पे क्यों डेवलप हुई, हमको फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जानना होगा। और अगर हमारे माइंड में ये क्वेश्चन उठता है कि करंट का क्या डायरेक्शन होगा तो हमें लेंज लॉ जानना होगा। तो नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दो लॉज दिए। फर्स्ट लॉ, अपने पहले लॉ में उसने ये कहा whenever between coil and magnet relative motion takes place, जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल चेंजेस। ये टर्म आपके लिए नया है डियर स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द कॉइल चेंजेस। और ये मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज ही रिस्पॉन्सिबल है करंट के प्रोड्यूस करने के लिए। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो करंट नहीं डेवलप होगी। हम आपको बताएंगे आगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है, लेकिन फिलहाल आप इतना समझिए
कि जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हम करते हैं तो कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से ही कॉइल में करंट प्रोड्यूस होती है। ये फर्स्ट लॉ है। वंस अगेन, व्हेनेवर बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट वी परफॉर्म रिलेटिव मोशन, magnetic flux linked with the coil changes, and this change in magnetic flux of the coil is responsible for the production of current. सेकेंड लॉ में, सेकेंड लॉ का उसने इसलिए डेवलप किया कि लोगों ने उससे पूछा था कि स्लोली मोशन करने पर करंट क्यों नहीं डेवलप हो रही है, स्पीडली मोशन करने पर करंट क्यों डेवलप हो रही है। तो उसने ये कहा कि ईएमएफ इंड्यूस्ड, ये जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, मींस जो कॉइल में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता है, दैट वेरीज डायरेक्टली विद रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। इसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम। तो उसने कहा कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ। मींस जितना ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होगा, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा। और आप जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट भी उतनी ज्यादा होगी, ओम ने कहा था। तो जब हम कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन बहुत स्लो स्पीड से कर रहे थे, जब हम कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन बहुत स्लो स्पीड से कर रहे थे, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज तो हो रहा था, लेकिन मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत स्लो रेट से चेंज हो रहा था। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत स्लो रेट से चेंज हो रहा था, जब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स बहुत कम था, क्योंकि स्पीड बहुत कम थी, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत कम था। इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत कम होने की वजह से करंट बहुत कम थी, और करंट इतनी कम थी कि वो कॉइल हमारी डिफ्लेक्शन ही नहीं दे रही थी। लेकिन जब हमने कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन बहुत ज्यादा स्पीड से किया, चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम बहुत बढ़ गया, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बहुत बढ़ गया, और जिसकी वजह से इंड्यूस करंट बहुत बढ़ गई, और जिसकी वजह से कॉइल में हमको डिफ्लेक्शन दिखाई पड़ा। तो फैराडे ने अपने दो लॉस की हेल्प से जो उसने ऑब्जर्वेशन किए थे वो सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। पहला लॉ ये कहता है कि जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन हम करते हैं, कॉइल का मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से कॉइल में करंट डेवलप होती है। और दूसरा लॉ ये कहता है कि मैग्नेटिक फ्लक्स जितनी ज़्यादा रेट से चेंज होगा, व्हेन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विल बी मोर, EMF will be more, current will be more. When rate of magnetic flux change will be less, EMF will be less, current will be less. स्लो मोशन करते हैं, बहुत स्लोली मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बहुत स्लो है, करंट बहुत कम है। मोशन बहुत हाई स्पीड से करते हैं, बहुत हाई स्पीड से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, जिसकी वजह से EMF बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, करंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब लेंज लॉ को जानने से पहले हमको यह जानना है कि मैग्नेटिक फ्लक्स होता क्या है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स का मतलब होता है बंडल ऑफ लाइंस। फ्लक्स मींस बंडल ऑफ लाइंस। बंडल ऑफ लाइंस। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का मतलब होगा बंडल ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। जब हम बार मैग्नेट को रखते हैं तो इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस, बार मैग्नेट की स्केच हमने की थी, आप याद अगर करें तो बहुत से लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। नॉर्थ पोल से निकलती है लाइंस, साउथ पोल से अंदर होती हैं। 30 ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप पढ़ चुके हैं अपने चैप्टर में। तो हर मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करता है। अब मान लीजिए बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस हैं
और इस फील्ड लाइंस के पास में हमने एक क्लोज लूप ले लिया, एक रिंग आप पकड़ लीजिए हाथ में, इस तरह से रखिए। तो जो लाइंस हैं इसमें से अगर 100 लाइंस ये बार मैट प्रोड्यूस करता है, उस 100 लाइंस में से 10-15 लाइंस इस रिंग से भी पास होंगी, और अगर 10-15 लाइन इस रिंग से पास हो रही हैं तो उस 10-15 लाइन में कुछ लाइंस ऐसी भी होंगी जो रिंग्स के सरफेस के नॉर्मली पास होंगी। मीन्स अगर हमारी हाथ या रिंग है तो लाइंस ऐसे पास होंगी, नॉर्मल टू द सरफेस, कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ ऐसे जाएंगी, कुछ उधर जाएंगी, कुछ नीचे जाएंगी, कुछ नॉर्मल भी तो जाएंगी। तो वो नंबर ऑफ लाइंस, वो नंबर ऑफ मैटिक लाइंस जो किसी क्लोज लूप के नॉर्मली पास होती हैं, उस नंबर ऑफ मैटिक लाइंस को हम कहते हैं मैटिक फ्लक्स। डिफाइन कैसे करते हैं? नंबर ऑफ मैटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज लूप नॉर्मली। मैटिक फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ मैटिक फील्ड लाइंस number of magnetic field lines passing through any close loop normally। तो जब तक मैग्नेट और कॉइल दोनों रेस्ट पर है, अगर इस कॉइल से मान लो 5 लाइंस नॉर्मली पास हो रही हैं तो वो 5 लाइंस लाइफ लॉन्ग नॉर्मली पास होती रहेंगी, ना कम होंगी ना ज़्यादा होंगी। लेकिन जब हम मैग्नेट और कॉइल के बीच में मोशन करेंगे तो ये 5 लाइंस बढ़ के 7, 10, 15 भी हो सकती हैं और घट के 1, 2, 3 भी हो सकती हैं। जो लाइंस इस लूप के नॉर्मली पास हो रही हैं वो बढ़ भी सकती हैं, घट भी सकती हैं। इसीलिए जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन करते हैं, number of lines passing through the coil normally changes, means magnetic flux changes, and because of which in the coil current is developed। now अगर मैग्नेट और कॉइल दोनों मूव करते एक ही स्पीड से, इधर माने दोनों भाग रहे हैं एक ही स्पीड से, तो इनके बीच में सेपरेशन बदलता नहीं, और जब इनके बीच में सेपरेशन नहीं चेंज होता तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल नॉर्मली भी चेंज नहीं होता। आप एक वाटर पाइप ले लीजिए, उस वाटर पाइप का कनेक्शन टैप से कर दीजिए, तो जो माउथ ओपन है उससे वाटर बीम बाहर निकलेगी। अगर आप टैप के माउथ पे फिंगर रख दीजिए तो ये बीम स्ट्रीम के फॉर्म में बाहर निकलेगी। आगे एक रिंग लगा दीजिए, आपने हैंड में अपने हाथ में पकड़ा हुआ है फ्री एंड को, और आगे एक रिंग लगी हुई है, तो इससे कुछ लाइंस वाटर स्ट्रीम इसके नॉर्मल ही पास होंगी। तो जब तक ये दोनों रुके हुए हैं, अगर इससे 100 वाटर स्ट्रीम निकल रही है तो हो सकता है उसमें 4-5 इसके नॉर्मली पास हो रही हों। लेकिन जब आप इनके बीच में मोशन करेंगे, इसको पास लाएंगे, तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस रिंग इंक्रीज करेगी नॉर्मली, और दूर ले जाएंगे तो नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू दिस रिंग डिक्रीज करेगी। इसी तरह से इसमें है, अगर आप इसको लाइंस को वाटर स्ट्रीम सपोज कर लें, तो जब रिंग पास आएगी तो लाइंस नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कॉइल बढ़ेंगी, और दूर जाएगी तो लाइंस नॉर्मल टू सरफेस ऑफ कॉइल कम होंगी। तो हम ये इन जनरल कहते हैं कि जब भी कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन करते हैं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द कॉइल नॉर्मली चेंजेस, मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस, एंड व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस current is induced. This was said by Faraday. Now this is the topic up to which I am discussing today. Now my next video lecture will be Lenz law, means current किस डायरेक्शन में मूव करती है, as well as AC generator. So wait till my next video lecture. I hope आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो कमेंट कीजिए, अपने और फ्रेंड्स से बोलिए कि सब्सक्राइब करें जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जिससे वो भी बेनिफिट ले पाएँ। थैंक यू।